Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। We're studying through the gospel according to Mark. और हम लोग मरकुस का अध्ययन कर रहे हैं। We are at chapter 11 right now. और अभी हम अध्याय 11 में हैं। We see Jesus is entering Jerusalem on a donkey. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं गधे पे सवारी होकर। And people are singing and praising and rejoicing his entering into Jerusalem. और लोग गाना गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। He comes into the temple and looks at everything and then goes back to Bethany with his disciples. और यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, सबके साथ होते हैं और उसके बाद वो फिर से अपने शिष्यों के साथ बेतनी चले जाते हैं। I want you to pay attention to what's going to happen next. और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि आगे क्या होने वाला है। This is the last week of Jesus on the face of earth as a human being. और यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते उनका ये आखिरी हफ्ता है। And we can see that Jesus is now entering into the temple again the next day. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वापस से मंदिर में प्रवेश करते हैं अगले दिन। We'll see what happens there. और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। So now Jesus is going to do something that we read here has been used by many unbelievers to challenge the nature of Jesus. और यहाँ पे यीशु मसीह ऐसा कुछ करते हैं जो अविश्वासी लोगों के लिए एक चुनौती है। So verse 12. वचन 12। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकलते हैं तो उसको भूख लगी। Jesus is hungry, as a human being, he was hungry. और यीशु मसीह को भूख लगी थी। And Jesus is in Bethany now. और यीशु मसीह अब बेतनिया में है। And he's just going out and he's hungry and he had a long day today, lot of traveling. और वो अभी बाहर है और उनके लिए पिछला दिन जो था वो बहुत ही लंबा दिन था उनके लिए और अभी वो सफर पे जा रहे हैं। In verse 13. वचन 13। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था। The fig trees bore fruit at a season. और अंजीर का जो पेड़ था वो एक मौसम के अनुसार वो फल देते हैं। But many times there are special fig trees that blossom and give forth an unripe fruit before the season. लेकिन कुछ विशेष पेड़ ऐसे भी होते हैं जो किसी मौसम में कच्चा अंजीर देते हैं। And during that time the leaves all, are completely evergreen and it's visible and it's attractive. और उस समय में उनका जो पत्तियां होती है वो बहुत ही हरा होता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। This incident has been used by many unbelievers to challenge Christians. और ये जो घटना है बहुत से अविश्वासी लोग इसको चुनौती रखते हैं बहुत से क्रिस्तियों के बीच में। Because Jesus is doing something here which is very different than what he has done so far. क्योंकि यीशु मसीह अभी कुछ अलग कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। I want you to understand Jesus is also a prophet. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक भविष्यकर्ता भी है। Prophets do things so that people will understand, and there is a figurative way of expression when the prophets do things. और भविष्यकर्ता ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो कुछ हमें समझाने की कोशिश करते हैं अलंकारिक रूप से। And here we can see far in the distance Jesus is seeing this fig tree which is so green and attractive like it has fruit. और यीशु मसीह यहाँ पे दूर से उस पेड़ को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा दिखता है, हरा भरा उसका पत्ता दिखता है। The appearance of fruitfulness. और ऐसा दिख के आता है कि वो पेड़ जो है बहुत ही फलदायक पेड़ है। But now Jesus is hungry also. और अभी यीशु मसीह भूखे भी है। So he is drawn to go to the tree. और अभी उन्हें उस पेड़ के तरफ उन्हें जाने का मन होता है। Probably they were, like I said, exotic fig trees that bore fruit beyond or before the season. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो मौसम के पहले ही अंजीर देते हैं। And if you understand here, because it's figuratively, there is a meaning
towards this incident that I want to bring forth to you. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इसे आलंकारिक तरीके से बताया गया है तो इसका एक विशेष रूप से इसे बताया गया है, तो वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा. Because this is an incident that is connecting the incident before and the incident that's going to come after this. क्योंकि इसके पहले और इसके बाद में क्या होने वाला है उसमें एक संबंध है. See, now Jesus looks at the tree and walks towards the tree. और अभी यीशु मसीह उस पेड़ के तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं. Verse 13 and 14. 13 और 14. और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था. इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए. और उससे चेले सुन रहे थे. It might look like this fig tree was innocent, that Jesus just cursed it. ऐसा देखने में आता है कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा और उन्होंने अभिशाप दिया. But that's not how it is. लेकिन ऐसा नहीं है. This is why many unbelievers take this and say, Jesus cursed a tree. How could he do that? और इसीलिए बहुत से अविश्वासी लोग का ये मानना है और ये बोलते भी है कि यीशु मसीह ने अभिशाप दिया, ऐसा क्यों वो करते हैं. And they even say this tree is so innocent. Why would God, who is so holy, would do that? और एक पेड़ जो है वो नादान है और परमेश्वर ऐसा एक पेड़ के साथ क्यों करता है. But the truth is, Jesus is sinless. लेकिन सच्चाई की बात यह है कि यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया. Jesus Christ is holy. यीशु मसीह पवित्र है. The Bible says that he did not see sin. और बाइबल में ऐसा कहा गया है कि यीशु मसीह ने कभी पाप को नहीं देखा. He did not commit sin. That's what the Bible says. और बाइबल में ये भी कहा है कि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया. If you understand what the scripture says and if you believe in that, if you stand on it, then you will see things in the light of what God wants to reveal. अगर आपने बाइबल पढ़ा है, आप बाइबल को समझते हैं और बाइबल में क्या लिखा है उसे मानते हो, तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह का यहाँ पे क्या कहना है. So Jesus did not sin. तो यीशु मसीह ने पाप नहीं किया. So he saw this tree from far, which looked beautiful. और उन्होंने इस पेड़ को देखा दूर से जो बहुत ही सुंदर था. And he came close to it because he was hungry. और वो इस पेड़ के करीब आए क्योंकि वो भूखे थे. So that he can have the fruit in it and fulfill his hunger. ताकि वो उस पेड़ से फल खा सके और उनका भूख मिट जाए. And it was not there. लेकिन उस पेड़ में फल नहीं था. It was a disappointment. और उन्हें बहुत निराशा हुई. And Jesus said, no one will ever eat a fruit again from you. और यीशु मसीह ने कहा कि अब से कोई भी तेरे पेड़ से फल नहीं खाएगा. And this was in the midst of not a big crowd, but just his 12 disciples. ये यीशु मसीह ने सब भीड़ के सामने नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह के शिष्यों के सामने जो सिर्फ 12 लोग थे उनके सामने कहा. This incident is significant. और ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है. It does reflect upon the human nature of the religious leaders of that time. और ये उस समय के जो भी धार्मिक अगुवाई थे उनके बारे में दर्शा रहा था. It was about hypocrisy. और यहाँ पे दिखावटी के बारे में बताया गया था. In simple terms, if I would explain this, you will understand. अगर सामान्य तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ आएगा. Jesus saw the tree and it was green and it was so attractive as if there is fruit in it, and he comes close to it and there was no fruit. और यीशु मसीह ये बहुत ही सुंदर पेड़ को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर था, लेकिन जब सामने जाते हैं तो उसमें फल नहीं था. This is exactly how the religious leaders were. और ऐसे ही जो धार्मिक अगुवाई है उनका व्यवहार भी ऐसा ही था. They were all men who looked holy, walked holy, acted holy, had great piety and had great religious ritual experiences, and they displayed great holy character. और ये वही लोग हैं जो दिखने में पवित्र दिखते हैं, चलते भी है ऐसा चलते हैं कि जैसे बहुत पवित्र है, और ऐसा उनका स्वभाव दिखाने की कोशिश करते थे कि वो बहुत ही अच्छे हैं. Just a public appearance. बस ये लोगों को दिखावटी के लिए वो कर रहे थे. But they did not have the fruit of holiness in them.
लेकिन उनके अंदर कोई भी पवित्रता का फल नहीं था They were not bearing the fruit of repentance. और उनके अंदर कोई भी मन फिराव का फल नहीं था They were not worshiping the Lord with all their hearts, with sincerity. और उन्होंने कभी भी परमेश्वर का पूरी तरीके से उनके पीछे वो नहीं चले The religious leaders were all like whitewashed tombs who looked beautiful from the outside, but inside filth and dead. और ये जो धार्मिक अगुवाई थे वो लोग बाहर से तो बहुत अच्छे सज धज के आते थे जैसे कि वो बहुत पवित्र है लेकिन अंदर से वो मरे हुए थे This is exactly how you would see religious leaders even today in Christendom in so many places. और आज भी हम ऐसे धार्मिक अगुवाई को देखते हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं Brother, sister, we are supposed to represent Jesus. भाइयों बहनों हमें यीशु मसीह को दर्शाना है We are supposed to follow him in and out. और हमें उनके पीछे चलना है But you have to understand, the moment you commit your life to follow Christ, you are not washed away from all sinfulness. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पाप पूरा धुल गया है We still have the nature of sin in us. अभी भी हमारे अंदर पाप का स्वभाव है Then why do so many people act like they're so holy? तो फिर क्यों इतने सारे लोग अभी भी दिखावटी करते हैं कि वो इतने पवित्र है They act like this tree which is from outside, they are so looking holy and evergreen and innocent. वो ऐसे पेड़ की तरह है जो बाहर से इतना सुंदर और पवित्र और नादान दिखते हैं You want to also be like them, live like them, walk like them. और आप भी उनकी तरह जिएंगे उनकी तरह चलने की कोशिश करेंगे You want to have a life like them. You want to wear clothes like them. That's how they will attract, they will look like. और आपको भी उनकी तरह बनना है उनकी तरह कपड़े पहनने हैं क्योंकि वो ऐसा दिखाते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना होता है The truth is there is a big pressure on people to act holy or impress others. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए There's a pressure to be impressing on others about holiness and piety. और हमेशा एक दबाव होता है कि हमें अच्छा बन के दिखना है पवित्र बन के दिखना है लोगों के सामने But no fruit. लेकिन कोई फल नहीं है Unfortunately, many Christians set high expectations, so many other believers will have to please them by acting holy. और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे लोगों को हमेशा उच्च स्तर में रहना पड़ता है पवित्रता दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि वो कितना पवित्र है And as we see people walking into the church or worship places or they are in fellowship, you can see that they feel they must pretend to be holy. और जब ऐसे लोग जब कलेशिया में आते हैं सबके सामने जब वो व्यवहार करते हैं तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं और कितने पवित्र हैं And there is an expectation and a standard, so people feel like if they would not behave in a certain way, which is religious looking, they would not be accepted or approved. और ऐसे ही अपेक्षा उनसे की जाती है और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं पवित्र नहीं दिख रहा हूँ तो शायद लोग मुझे अपनाएंगे नहीं So they try to wear clothes in such a way, they try to wear white only, they behave in a particular way, but in real, their hearts are so far away from God in their personal life. इसलिए वो ऐसा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि लोग उन्हें इज्जत दे सके उन्हें आदर दे सके Their hearts are so far away. लेकिन उनका दिल बहुत दूर है See, the process of sanctification is a lifelong process. और पवित्रता का प्रक्रिया जो है वो उसके लिए जीवन भर लगता है The baptism doesn't wash away all of our sinful nature. और बपतिस्मा हमारे पापों को पूरी तरीके से नहीं धोता Our hearts are still sinful. हमारा दिल अभी भी पापी है Yes, our conscience becomes alive and we are so sensitive and aware of the sin and aware of our fallen nature. हाँ हमारा विवेक जो है यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण हमारा विवेक जीवित होता है और हम यही सोचते हैं कि हमें और पाप नहीं करना है लेकिन फिर भी हम यीशु की तरह बिना पाप के नहीं हैं But we are not sinless like Christ.
लेकिन हम यीशु की तरह बिना पाप के नहीं हैं। See, discipline, commitment, devotion, these are all important. अनुशासन, प्रतिबद्धता और भक्ति भाव ये सब महत्वपूर्ण है। They are a response to our Savior's guidance to sanctification. और मसीहा के द्वारा ही हम पवित्र होते हैं। So don't set high standards for yourself or for others. So we have to live up to it and act, hypocritically. इसलिए दूसरों के लिए उच्च मानक ना रखें और हमें ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, दिखावटी जीवन में जीने की जरूरत नहीं है। But be in love. लेकिन हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। Let's be patient. हमें धीरज बांधना चाहिए। We have to understand in our church, in our congregations, we are a fellowship of sinners who are pursuing Christ. हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम कलेशिया में आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो हमें ये जानना है कि हम भी पापी हैं और हमें एक दूसरे के साथ वो प्रेम रखना चाहिए। God is not finished with us. और परमेश्वर का काम अब तक खत्म नहीं हुआ है। Let us not pretend to be holier than who we are. अधिक पवित्र होने का दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। We should learn to be humble and depending upon Jesus and seeking Him for His way and for His revelation. और हमेशा हमें धीरज बांधना चाहिए, नम्रता में रहना चाहिए और यीशु मसीह के साथ वो रिश्ता कायम रखना चाहिए। We have to learn to build a relationship with one another in pursuing Christ and doing good. और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए और हमेशा यीशु मसीह के पीछे जाना चाहिए। That is what is bearing fruit in Christ. और उसी को कहते हैं कि यीशु मसीह में हम फलवंत हो सकते हैं। Let us not pretend. इसलिए हमें दिखावटी नहीं करना चाहिए। Let us not act. हमें वो एक्टिंग नहीं करना है। Let us not just show off as if we are holy. और ऐसा दिखावटी नहीं करना है कि देखो हम कितने पवित्र हैं। Let's not fake it. और वो हमें दिखावटी नहीं करना है। Because Jesus is watching us, God is watching us everywhere. क्योंकि यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहे हैं सब जगह से। People come around and say, praise the Lord, brother, but then deep inside they have so much of hatred and competitiveness towards the other brother. और लोग हमेशा आके प्रेज द लॉर्ड ब्रदर करके कहते हैं, लेकिन ऊपर से इतना हंस के बात करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कड़वे होते हैं। Hypocrisy does not bring blessing in your life, but rather it's a curse. दिखावटी आपके जीवन में कभी भी आशीर्वाद नहीं लाता, लेकिन वो सिर्फ अभिशाप ही लाता है। It looks beautiful, वो सुंदर दिखता है attractive. और आकर्षित दिखता है। It will look holy and looks like it's fruitfulness. और वो पवित्र दिखेगा और ऐसा भी लगेगा कि इसमें ये कितना फलवंत है। But it's just cursed. Don't look for a curse. लेकिन ये सिर्फ बाहरी रूप से है, लेकिन अंदर से पूरा अभिशाप है। Now the question is, Jesus, the one who blesses, who is the blessing, is now can curse? Can he? और अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो खुद एक आशीर्वाद है और वो यहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं और अभिशाप दे रहे हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? Can Jesus get angry? क्या यीशु मसीह को गुस्सा आ सकता है? Lot of people preach saying that you can be whoever you are, you can do whatever you want, just come to Jesus and then you can continue to be whoever you are, however you are, but God will still take care of you. It's just not what the Bible teaches. और बहुत से लोगों का ये मानना है कि तुम जैसे भी हो वैसे ही तुम यीशु मसीह के पास आओ, जैसे भी तुम्हारा पाप है, जो भी तुम्हारा व्यवहार है या स्वभाव है, वैसे ही लेकर आओ, कोई बात नहीं। I believe you can come to Jesus as whoever you are. और मैं ये मानता हूँ कि जैसे भी तुम हो वैसे तुम यीशु मसीह के पास आ सकते हो। But once you meet Jesus, लेकिन एक बार तुम्हारा मिलना यीशु मसीह से होता है, you will change. तुम बदलते हो You will see the change. और तुम खुद वो बदलना देखोगे You will desire to change. और तुम्हारा इच्छा होगा कि तुम्हें बदलना है, Not the outward appearance, बाहरी तरीके से नहीं, from inside out. लेकिन अंदर से। That's the true repenting heart. और उसी को कहते हैं कि सच्चा मन फिराव दिल। And the Holy Spirit will bring you to that place. और पवित्र आत्मा आपको उस जगह पे ले आएंगे। That's the process of sanctification.
और वही है शुद्धता का, पवित्रता का प्रक्रिया। If we are not allowing Christ to lead us, अगर हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमने नहीं दिया, if we start following what looks beautiful in the religious ways and start following that, we will be distracted and go into hypocrisy. अगर हम सिर्फ धार्मिकता के रास्ते में जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम भी दिखावटी के रास्ते में जा रहे हैं। We can provoke God to anger. और इसके द्वारा हम परमेश्वर को गुस्सा दिला सकते हैं। Jesus is happy, sweet, but also can be provoked to anger. और यीशु मसीह बहुत ही खुश है, आनंदित है और अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें हमें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। Remember what Jesus suffered on the cross is basically the wrath of God towards sin. और आप ये सोचिए कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे चढ़े हैं, सिर्फ आपके और मेरे पापों के लिए, और इसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध हमारे पापों की वजह से यीशु मसीह के ऊपर गिरा। God is provoked to anger. क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा दिलाया गया था। Jesus saw hypocrisy, and hypocrisy is something God does not appreciate. और यीशु मसीह ने दिखावटी को देखा और यीशु मसीह को, परमेश्वर को ये दिखावटी नहीं पसंद। Hypocrisy can provoke God to anger. और दिखावटी के द्वारा परमेश्वर को गुस्सा आता है। Be careful. इसलिए आप ध्यान दें, Be watchful. इसलिए आप सावधानी बरतें। If you are a person who is acting to be holy by just wearing certain kind of clothes, act in a certain way, talk in a certain way, develop social skills, but then deep inside your heart, you're an angry, upset, prideful person, bring before Jesus your heart and repent, and He will forgive you and lead you to the path of life. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो बाहर से अच्छा कपड़ा पहनते हो और दिखावटी करते हो, ये दिखाते हो कि आप कितने अच्छे हो और पवित्र हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ही कठोर हो, कड़वाहट आपके मन में भरा हुआ है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये समय है कि आप मन फिराए और परमेश्वर के पास फिर से आए। Are you a person of love? क्या आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं? Do you have the joy of the Lord in your heart? क्या आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है? Do you make peace with people? Do you have peace? क्या आप लोगों के साथ हमेशा शांति रखते हो? क्या आपके अंदर शांति है? Are you a person who is patient with others, with situations? क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो? क्या आप धीरजमंद व्यक्ति हो? Are you kind? क्या आप कोमल हो? Are you gentle? क्या आप दयालु हो? Are you focusing on the good things? क्या आप अच्छे चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो? Are you a faithful person? क्या आप वफादार व्यक्ति हो? These are all the part of the fruit of the Holy Spirit. और ये सब पवित्र आत्मा का फल है। Please understand. और ये समझने की कोशिश कीजिए। Don't try to act as a hypocrite. इसलिए आप दिखावटी करने की कोशिश ना करें। That's the lesson we can learn here. और वही हम यहाँ पे आज सीख सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Draw close to the Lord और परमेश्वर के करीब आए, because He is drawing close to you. क्योंकि वो आपके करीब है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just bring forth the brothers and sisters before you and ask you for a change in their life and let them see their own lives and draw from you. Let them really let you control and lead them in the way of sanctification. Let us not act pious and holy and joyful, but sincerely seek you, Lord. And I pray for a spirit of humility to take over every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। See you later. प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है।
और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।